اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے عین التمر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوئی عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، عقا بن ابی عقا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں تمام بدوئی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عقا کو بازو سے پکڑا اور اسے اتنی آگے لے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کی زد میں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، یہ ہے تمہارا سردار، تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کروائی تھی، کہاں ہیں تمہارے دوست؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عقا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہران اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے؟ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ہیں تمہارے بھائی، چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتا چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئیں۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے، ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھیں کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھی۔ جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے وہ آہوزاری کر رہی تھی۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب دیا گیا، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوئی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کروا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درس گاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 عمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقا بن ابی عقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ بدوئی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈال دیے۔ ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المومنین کو پیش کریں۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔
पहले सुनाया जा चुका है कि खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए हुक्म भेजा था कि वो एयाज बिन गनम के इंतजार में हीरा में रुके रहें। उस वक्त एयाज रज़ियल्लाहु अन्हु दौमतुल जंदल में लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई की सूरत हाल एयाद के लिए अच्छी न थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया और हीरा से कूच करके अंबार को मुहासरे में ले लिया। फतह पाई, फिर ऐनुल तिमर का मार्का लड़ा और कामयाबी हासिल की। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पैगाम में कहा था कि वो हीरा में बैठे रहते तो फारिस वालों को अपनी शिकस्तों से संभलने का और जवाबी हमले की तैयारी का मौका मिल जाता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिश ये थी कि दुश्मन को कहीं भी कदम जमाने का और जवाबी वार करने का मौका न मिल सके। उन्होंने आतिश परस्तों की फौज को नफ्सियाती लिहाज से कमजोर कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन की हुक्म उदूली तो की थी, लेकिन अमलन साबित कर दिया था कि ये हुक्म उदूली कितनी जरूरी थी। याद बिन गनम अभी तक दौमतुल जंदल में फंसे हुए थे और उनकी कामयाबी की तवक्को बहुत कम थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो मुनासिब समझा वो किया। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वलीद बिन उक़बा से कहा, उसने जो सोचा था वही हुआ। याद की तरफ से इत्तलाएं आ रही हैं, वो उम्मीद अफजा नहीं। दौमतुल जंदल पर हमारा कब्जा बहुत जरूरी था, लेकिन अब मुझे याद के मुताल्लिक तशवीश होने लगी है। इब्ने उक़बा, तुम ऐनुल तिमर वापस न जाओ, दौमतुल जंदल चले जाओ और वहाँ की सूरत हाल देख कर खालिद के पास जाओ और उसे कहो कि याद की मदद को पहुँचे। वलीद बिन उक़बा रवाना हो गए। याद बिन गनम खुद परेशान थे। उसके साथ जो सालार थे वो उन्हें कह रहे थे कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए मदद की जरूरत है, वरना शिकस्त का खतरा साफ नजर आ रहा है। मौरिख तबरी और अबू यूसुफ की तहरीरों के मुताबिक आखिर याद बिन गनम ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक तहरीरी पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी मखदूश सूरत हाल और अपनी जरूरत लिखी। वलीद बिन उक़बा भी याद के पास पहुँच गए। उनका जल्दी पहुँचना आसान न था। मदीना से दौमतुल जंदल का फासला 300 मील से कुछ कम था और ज्यादातर इलाका सहराई था। पहुंचना जल्द था। वलीद जब याद के पास पहुंचे तो वो जैसे होशो हवास में नहीं थे। उन्होंने आराम की न सोची, याद की सूरत हाल देखी। याद बिन गनम ने वलीद बिन उक़बा से कहा, मैंने खालिद को मदद के लिए कल ही पैगाम भेजा है। मालूम नहीं वो खुद किस हाल में है, लेकिन मेरे लिए और कोई चारा नहीं, तुम देख रहे हो। वलीद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद ने आतिश परस्तों की शहनशाही और उनकी जंगी ताकत को जड़ों से उखाड़ फेंका है। अमीरुल मोमिनीन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारी जरूरत का जायजा लेकर उन्हें बताऊं, लेकिन तुम्हें फौरी मदद की जरूरत है। मैं मदीना जाने की बजाय ऐनुल तिमर चला जाता हूँ। खालिद तुम्हारी मदद को आएगा। ये उस दौर की फर्ज शिनासी और जज्बा था जिसमें खुशामद, दिखावे और काम चोरी का जरा सा भी अमल दखल न था। वलीद बिन उक़बा ने ये न सोचा कि वो वापस मदीने जाएं और खलीफा के हुक्म के मुताबिक उन्हें अपनी कारगुजारी बढ़ा चढ़ा कर सुनाएं और साथ ये कहें कि हुजूर याद तो बड़ा नालायक सालार है, अगर उसकी जगह मैं होता तो यूं करता। मगर वलीद ने देखा कि सूरत हाल मखदूश है तो वो अपने हाकिम खुद बन गए और मदीने की बजाय ऐनुल तिमर को घोड़ा दौड़ा दिया। उनके सामने पूरे 300 मील सहराई मुसाफत थी। इराक और शाम के सहरा उसी इलाके में मिलते और मुसाफिरों के लिए जान का खतरा बन जाते। वलीद ने अपने घोड़े पर, अपने आप पर, अपने 4 मुहाफिजों और उनके घोड़ों पर ये जुल्म किया कि कम से कम आराम के लिए कहीं रुके। वो मौसम गर्मी के उरूज का था। महीना अगस्त 633 ईस्वी था। दौमतुल जंदल बहुत बड़ा तिजारती शहर था। दूर दराज ममालिक के ताजिर यहाँ आया करते थे। तिजारत के अलावा या तिजारत की बदौलत उस शहर को दौलत और जर्रो जवाहिरात का मरकज समझा जाता। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहर और उससे मिलने वाली शहराहों की जुग्राफियाई पोजीशन देखकर उस पर फौज कशी की थी। ये मुहिम गज़वा तबूक के नाम से मशहूर हुई। उस वक्त दौमतुल जंदल का हाकिम और कलादार उकेदर बिन मालिक था। उसने मुसलमानों का मुकाबला बेजिगरी से किया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस मार्के में शरीक थे। उन्होंने उकेदर को गैर मामूली शुजात का मुजाहरा करते हुए जिंदा पकड़ लिया था और उसके सिपाह ने हथियार डाल दिए थे। उकेदर बिन अब्दुल मलिक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली और वफादारी का हल्फ उठाया। उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। इस तरह ये इतना बड़ा शहर मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के साथ ही इर्तिदाद का फितना तूफान की तरह उठा। उकेदर भी मदीने से मुनहरिफ हो गया और उसने इताअत और वफादारी के मुआहदे को अलग फेंक दिया। उसने दौमतुल जंदल को एक रियासत बना लिया जिसके बाशिंदे भी ईसाई थे और बुत परस्त भी। ईसाइयों का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला कल्ब था।
अमीरुल मोमिनीन ने उकैदर बिन अब्दुल मलिक की सरकूबी के लिए और उसे अपनी इताअत में लाने के लिए इयाद बिन गनम को एक लश्कर देकर भेजा। वहाँ जाकर इयाद ने देखा कि उनका लश्कर तो बहुत थोड़ा है और दुश्मन कई गुना ताकतवर है, लेकिन मदीना से तकरीबन 300 मील दूर आकर वापस चल पड़ना तो मुनासिब न था। दौमतुल जंदल की दीवार ऊंची और मजबूत थी। पूरा शहर बड़ा मजबूत कला था। इयाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर का मुहासरा किया जो मुकम्मल न था। एक तरफ रास्ता खुला था। उकैदर की सिपाह की कुछ नफरी खाली तरफ से आती और मुसलमानों पर हमला करती। कुछ देर लड़ाई होती और ये नफरी भागकर किले में चली जाती। इन हमलों के अलावा किले की दीवारों से मुसलमानों पर तीरों का मेह बरसता रहा और उसके जवाब में मुसलमान तीरंदाज दीवारों पर तीर फेंकते रहे। उन्होंने किले के दरवाजों पर भी हल्ले बोले, मगर किले का दिफा तवक्को से ज्यादा मजबूत था। मुसलमानों के खिलाफ जंग का पांसा इस तरह पलट गया कि कबीला कल्ब के ईसाइयों ने अकब से आकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। वो मुसलमानों पर बढ़ बढ़कर हमले करते थे और मुसलमान जान की बाजी लगाकर हमलों को रोकते और पसपा करते। मुसलमानों की इस बेखौफी को देखकर ईसाइयों ने हमले कम कर दिए, मगर मुसलमानों को घेरे में रखा ताकि वो पसपा न हो सके और रसद वगैरह की कमी से परेशान होकर हथियार डाल दें। इयाद ने ये इंतजाम कर रखा था कि एक जगह रास्ता खुला रखा और उसकी हिफाजत के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक थी। उनका जानी नुकसान खासा हो चुका था। जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मुसलमान जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि शिकस्त उन्हीं की होगी। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐनुल तिमर को अपने इंतजाम में लाने के काम से फारिग हो चुके थे। उन्होंने अम्माल मुकर्रर कर दिए थे। 2-4 दिनों में ही वहाँ के शहरियों को यकीन हो गया था कि मुसलमान न उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, न उनके हुकूक पामाल कर रहे हैं, न उनकी औरतों पर बुरी नजर रखते हैं और उनके घर और अमवाल भी महफूज हैं। इसलिए वो इस्लामी हुकूमत के वफादार बन गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इयाद बिन गनम का कासिद पहुंचा और उनका तहरीरी पैगाम दिया। इयाद जिस मुसीबत में फंस गए थे वो लिखी थी। तफसील कासिद ने बयान की। दूसरे ही दिन वलीद बिन उक़बा पहुंच गए। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि एक घड़ी जो गुजरती है वो इयाद और उसके मुजाहिदीन को शिकस्त और मौत के करीब धकेल जाती है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, शिकस्त? खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख में शिकस्त का लफ्ज नहीं आना चाहिए। क्या उकैदर बिन अब्दुल मलिक मुझे भूल गया है? क्या वो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया है जिन्होंने उसे इताअत पर मजबूर किया था? क्या वो हमारे अल्लाह को भूल गया है जिसने हमें उस पर फतह अता फरमाई थी? तारीख शाहिद है कि बदले हैं तो इंसान बदले हैं, अल्लाह नहीं बदला। अल्लाह ने फतूहात को शिकस्तों में उस वक्त बदला था जब मुसलमान बदल गए थे और खुदा के बंदों के खुदा बन गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इयाद बिन गनम को पैगाम का तहरीरी जवाब दिया। उस दौर में अरबों की तहरीरों का अंदाज शायराना हुआ करता था। मौरखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब मंजूम अंदाज में था। उन्होंने लिखा, मिन जानिब खालिद बिन वलीद बनाम इयाद बिन गनम, मैं तेरे पास बहुत तेज पहुंच रहा हूँ। तेरे पास ऊंटनियां आ रही हैं जिन पर काले और जहरीले नाग सवार हैं। फौज के दस्ते हैं जिनके पीछे भी दस्ते, आगे भी दस्ते हैं। जरा सब्र करो। घोड़े हवा की रफ्तार से आ रहे हैं। उन पर तलवारें लहराने वाले शेर सवार हैं। दस्तों के पीछे दस्ते आ रहे हैं। पैगाम का जवाब कासिद को देकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कहा कि वो जितनी तेजी से आया था उससे ज्यादा तेज दौमतुल जंदल पहुंचे और इयाद को तसल्ली दे। उसके साथ ही उन्होंने अपने एक नायब सालार उवैम बिन काहिल सलमा को बुलाया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इब्ने काहिल सलमा, क्या तू जानता है कि मैं तुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ? उवैम ने कहा, अल्लाह मुझे हर उस जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत और अक्ल अता फरमाए जो मुझे सौंपी जाए। मेरी जिम्मेदारी क्या होगी इब्ने वलीद? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐनुल तिमर, इसका इंतजाम और इसकी हिफाजत। अंदर से बगावत उठ सकती है, बाहर से हमला हो सकता है। मैं तुझे अपना नायब बनाकर दौमतुल जंदल जा रहा हूँ। इयाद बिन गनम मुश्किल में है। उवैम ने कहा, अल्लाह तुझे सलामती अता करे। ऐनुल तिमर को अल्लाह की अमान में समझ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इब्तिदा में जो सिपाह थी वो जानी नुकसान के अलावा इस वजह से भी कम हो गई कि हर मफ्तूहा जगह 1-2 दस्ते छोड़ दिए गए थे। ऐनुल तिमर तक पहुंचते नफरी और कम हो गई। उस इलाके के मुसलमान बाशिंदों से नफरी बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा न थी। कुछ नौ-मुस्लिम भी सिपाह में शामिल हो गए थे, लेकिन अभी उन पर पूरी तरह एतमाद नहीं किया जा सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ दस्ते ऐनुल तिमर में छोड़े
6000 सवार अपने साथ लिए और दौमतुल जंदल को रवाना हो गए। फासला 300 मील था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 300 मील की ये सहराई मुसाफत सिर्फ 10 दिनों में तय कर ली। वो अभी रास्ते में थे कि जब उकेदर के आदमियों ने उस लश्कर को देख लिया। वो मुसाफिर होंगे। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहुंचने से पहले दौमतुल जंदल में इत्तला दे दी कि मुसलमानों का एक लश्कर आ रहा है। बाज मौरखों ने यह भी लिखा है कि दौमतुल जंदल वालों को ये भी पता चल गया था कि उस इस्लामी लश्कर के सालार आला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। उस वक्त तक ईसाइयों के 3 बड़े कबीले बनु कल्ब, बनु बहरा और बनु गुस्सान जंग में शरीक थे। उकेदर बिन अब्दुल मलिक को इत्तला मिली तो उसने बड़ी उजलत से ईसाइयों और बुत परस्तों के छोटे छोटे कबीलों को भी जंग में शरीक होने के लिए बुलावा भेज दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहुंचने तक उन छोटे कबीलों ने अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तूफान की मानिंद पहुंचे। मुजाहिदीन ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर जोश खरोश से नारे लगाने शुरू कर दिए। इयाद बिन गनम के लश्कर ने ये नारे सुने तो सारे लश्कर ने नारे लगाए। उनके हारे हुए हौसले तरोताजा हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान जंग का जायजा लिया, फिर किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाकर किले की दीवारों का जायजा लिया और किले की दीवारों पर खड़े दुश्मन को देखा। दुश्मन की फौज के 2 हिस्से थे। एक का सालार आला उकेदर बिन अब्दुल मलिक और दूसरे का जोदी बिन रबिया था जो किले के बाहर था। किले के बाहर उन छोटे छोटे कबीलों के आदमी भी जमा हो गए थे जो उकेदर के बुलावे पर अभी अभी आए थे। उनके लिए किले का कोई दरवाजा न खुला क्योंकि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद किले के लिए बड़ी खतरनाक थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक दहशत का दूसरा नाम था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन पर जो नफ्सियाती वार करते थे उसका असर मुस्तकिल होता था। ऐसा ही एक जख्म उकेदर बिन अब्दुल मलिक पहले ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों खा चुका था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तो सोच रहे थे कि वो किले में किस तरह दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी दहशत किले के अंदर पहुंच चुकी थी। उकेदर ने ईसाई सरदारों को बुला रखा था और उन्हें कह रहा था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से टक्कर न लें और सुलह कर लें। ईसाई सरदार उसका मशवरा नहीं मान रहे थे। तकरीबन तमाम मौरखों ने उसके ये अल्फाज लिखे हैं। मेरे दोस्तों, खालिद से जितना मैं वाकिफ हूँ उतना तुम नहीं हो। मैं नहीं बता सकता कि उसमें कैसी ताकत है। मैं इतना जानता हूँ कि किस्मत हर मैदान में उसके साथ होती है। मैदान जंग का और किलों की तस्खीर का जो कमाल उसमें है वो किसी और में नहीं। तुम सोच रहे होगे और वो तुम्हारे सर पर खड़ा होगा। खालिद के मुकाबले में जो कौम आती है, खा ताकतवर खा कमजोर, वो खालिद के हाथों पिट जाती है। मेरा मशवरा तस्लीम करो और खालिद से सुलह कर लो। ईसाइयों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकस्तें खाई थी। वो इंतकाम लेना चाहते थे। उकेदर ने कहा, तुम उससे लड़ोगे तो हार जाओगे, फिर वो तुम पर रहम नहीं करेगा। अगर लड़े बगैर सुलह कर लोगे तो वो तुम्हारी जान, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे अमवाल की हिफाजत करेगा, मगर तुम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम उसकी चालें नहीं समझते। ईसाई सरदारों ने मुत्तफिका फैसला दे दिया, हम लड़े बगैर शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। उकेदर ने कहा, फिर तुम मेरे बगैर लड़ोगे, मैं इतना बड़ा शहर तबाह नहीं करवाऊंगा। ईसाई सरदार लड़ने के इरादे से चले गए। उन्हें उकेदर के इरादों का इसके सिवा कुछ इल्म नहीं था कि वो लड़ना नहीं चाहता। रात का पहला पहर था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का सालार आसिम बिन अम्र किले के उस तरफ गश्त पर फिर रहा था जिधर इलाका खाली था। उसे 4-5 आदमी किले से निकलकर उस खुले इलाके में आते दिखाई दिए। वो साए से लगते थे। आसिम बिन अम्र के साथ चंद एक मुहाफिज थे। उन्हें आसिम ने कहा कि उन आदमियों को घेरे में लेकर रोक लें। मुहाफिजों को मालूम था कि किस तरह बिखर कर घेरा डाला जाता है। वो आदमी खुद ही रुक गए। सालार आसिम उन तक पहुँचे। उनमें से एक ने कहा, मैं दौमतुल जंदल का हाकिम उकेदर बिन अब्दुल मलिक हूँ। आसिम ने कहा, अपने और अपने आदमियों के हथियार मेरे आदमियों के हवाले कर दो। उकेदर ने अपनी तलवार एक मुहाफिज के हवाले करते हुए कहा, मुझे खालिद के पास ले चलो, मैं नहीं लड़ूंगा, खालिद के साथ सुलह की बात करूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खैमे में उसकी बात को सुनकर कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता इब्ने अब्दुल मलिक। तू मेरा मुजरिम नहीं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम है। तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदअहदी की थी। तूने इस्लाम कबूल किया, फिर इर्तिदाद के सरदारों से जा मिला। उकेदर ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ पेश किया। ईसाई कबीलों से लाताल्लुक हो जाने का अहद किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये दुश्मनी मेरी और तेरी होती तो तुझे बख्श देने से कोई न रोक सकता, मगर तू मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे मजहब का दुश्मन था। खुदा की कसम, मैं तुझे बख्श नहीं सकता, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं दे सकता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया,
ले जाओ इसे, कल का सूरज इसे जिंदा न देखे। रात को ही उकैदर बिन अब्दुल मलिक का सर कलम कर दिया गया। सुबह तुलू होते ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इयाद बिन गनम को बुलाया और उसे बताया कि अब वो अपनी सिपाह का खुद मुख्तार सालार नहीं। इस हुक्म के साथ ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इयाद रज़ियल्लाहु अन्हु की सिपाह अपनी कमान में ले ली। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, अब लड़ाई किले के बाहर होगी। इतने मजबूत किले पर वक्त और ताकत खर्च करना महज बेकार होगा। पहले उस दुश्मन को खत्म करना है जो किले के बाहर है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तमाम सिपाह को तरतीब में किया। इयाद की सिपाह में जो मुजाहिदीन नौजवान और जवान थे उन्हें अलग करके उस तरफ भेज दिया जिधर एक रास्ता अरब की समत जाता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन जवानों से कहा कि दुश्मन इधर से भागने की कोशिश करेगा, उसे जिंदा निकलने न दिया जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ दस्ते अपनी जेर कमान लेकर एक ईसाई सरदार जोदी बिन रबिया के मुकाबिल रखे और इयाद को कुछ दस्ते देकर दुश्मन के दो सरदारों इब्ने हदरजान और अल एहम के दस्तों के सामने खड़ा कर दिया। अपने दोनों सालारों आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम को हस्बे मामूल पहलुओं पर रखा।